मैं वहाँ गया था कश्मीर पॉइंट प्रूफ करने कि no one can do this करामत better than me. इतना गुस्से में गया था. I believe that when I'm at my lowest, I get excited because I know for sure that something really good is happening. मैंने सज्जल के साथ सिर्फ एक बार काम किया. मेरी जो पर्सनल एक फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट है काम करने में, उनमें she goes straight to the top. मर्द सारे कहेंगे हमारी दुकानें बंद कराया करती हैं, क्योंकि ये आप देखो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो मुझे गालियाँ दे रहे होते हैं. बीप 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 उसकी ऐसी की तैसी. How can he say that about me? इस इंडस्ट्री ने आपको कोई एक लेसन दिया हो? अपने पैसे ना छोड़ो. Have faith in yourself, have faith in your craft, keep working, good things will happen. Hi Gibran, how's it going? I'm fine, Tia. Thank you very much for having me here. क्या चल रहा है? क्या कुछ अपडेट है? कोई नई ताज़ी? Well, इस वक्त तो just came back from vacations with my family, so I've put on quite a lot of vacation weight. And doesn't seem so, no. If the camera catches, I'm hiding it well. But I'm back on my diet and exercise regime. So वो और getting back in the work. छुट्टियों के बाद काम शुरू करना बहुत रस्टी होता है. So that's all like. वो सारा आपने अभी burn करने वाले phase में है. You know, you have to burn that. जो भी आपने weight gain किया है. Absolutely. You went to London, right? I was in London and there was a short trip to Paris as well. Okay. With my son only. अच्छा. So it's actually a yearly ritual. My in-laws are in London. अच्छा. तो ये बच्चे जाते हैं छुट्टियों में वहाँ. हालांकि मैं पूरा नहीं जाता हूँ. I dropped them. 8-10 दिन रहा. फिर मैं वापस आ गया. I had to finish my work in Kashmir. मैं कश्मीर चला गया. फिर बड़ी ईद पे मैं दोबारा गया. 8-10 दिन रहा और फिर उनके साथ वापस आया. I think it was 2007 with the debut drama Cousins. Was it Cousins? I think the most promising thing which I did and the first thing in my career was the sitcom which I took over from Fawad when he was doing Jatan Bond. अच्छा. That is 2002 I think. Oh, wow. When he was studying, I was also studying. So he did the first 40 episodes and then from 40 till 80 I did it. Okay. So that was my regular leading role in any project first time. But that was a sitcom. तो तब तक तो वही चलता रहा. तो 2002 की बात कर रहे हैं. हाँ, 2004 में मैं कराची आया था when Hum TV was launching. So I did their first soap as a lead guy. उसका नाम था तुम मेरे हो. तुम मेरे हो. That was my first major leading role in a project. चलिए 2002 से काउंट कर लेते हैं. to 2020. आपने लीडिंग बोला, वरना काम तो 2000 से मैंने शुरू कर दिया था. 2000 से शुरू कर दिया था. The small things, जो छोटे मोटे ये रोल, ये छोटा कैरेक्टर, ये वो. 2000 से कर लेते हैं. Yes. 2000 से माशाल्लाह 2023, ठीक है ना. आपको पता था या सोचा था आपने कि एक 100 रुपए की शर्ट, Oh my God. that story we've all heard it. रिपीट भी नहीं कर सकते. like Yes, like 100 everybody knows रुपए की it by शर्ट now, आपको यहाँ तक लेकर आएगी. No, like if you look back now. How could you know? I mean, at that time it was just about those 100 rupees, not even 100. It was about that ego कि यार चर्च जीतनी. And how old must you be? कितने? I was 21. Really? हाँ, 21. In 2000 I was 21. 100 रुपए की शर्ट आपको यहाँ तक लेकर आ गई. But looking back, क्या feelings हैं, क्या thoughts हैं इसके बारे में? Well, the biggest life lesson for me is that no matter what you plan in life, there is a bigger planner up there who has planned a lot of other things for you. So have faith in him. वो आपके लिए अच्छा ही करेगा. I was doing MBBS. I mean, you know, so मेरा कहीं से वो नहीं था, ना मेरे फैमिली में कोई ऐसा मेरे से पहले था कि मेरा रुझान हो इस तरफ. But I ended up being an actor, so frankly I don't know. I mean, what am I going to do next? हो सकता है यहाँ से कुछ और मैं I ended up opening restaurants as well in Islamabad with my friend. तो I actually अच्छा, कुछ कीड़ा है अंदर कि कुछ करना है, like yeah, you know, रहना. I am very open to life and whatever it throws at me. मैं बहुत rigid नहीं हूँ कि यार नहीं ऐसा करना है. No, I am very open to experiments. आपने मेरे काम में भी देखा होगा, मैं हर पुट्ठा सीधा काम करता हूँ. उस पे आएंगे, हम बात करेंगे. So that's in my nature कि I am very open to experiments. Like, tell me something interesting and I'll be like, really?
अच्छा जी, आई मीन फ्रॉम बड़े रोल करने से पहले, आई मीन लाइक लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्टिंग रोल्स दैट यू डिड। मुझे याद है कि आई डोंट रिमेंबर व्हिच इंटरव्यू वाज इट वाज, आई जस्ट सॉ दैट यू वर टॉकिंग कि जो आपने एक दुल्हन के ड्राइवर का रोल किया था, Yes, है ना? yes. दुल्हन के ड्राइवर का रोल किया था, इसमें इट वाज अ वेरी माइनर सपोर्टिंग रोल, एंड वहाँ पे आपने कहा कि डायरेक्टर ने आपका एक्सप्रेशन पकड़ लिया था। say again. I'm sorry to cut you. You've got all the history right, but you're mixing two things. उसमें नहीं पकड़ा था. उससे भी एक छोटा रोल. It was my first ever play in TV. जिसमें मेरा Which play was it? It was a series by the name of एक कहानी, और उसमें मेरी वाली जो कहानी थी उसका नाम था हुक. मरहूम सैयद तौफीक हुसैन शाह प्रोड्यूसर एंड टीवी के डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया था. तो उसमें मेरे वो तौकीर नासिर वाज द लीड इन इट, एंड आई हैड 2 सीन्स इन इट. कि मैं लड़की के साथ पार्क में फिर रहा हूँ, फिर माँ के साथ एक सीन, और तीसरे सीन में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है. तो मेरा दिल जो है वो तौकीर नासिर को लग जाता है, एंड देन ही गेट्स दोज क्वालिटीज ऑफ मी इन हिज पर्सनालिटी. ये उसकी स्टोरी थी, और मुझे शर्त जीतनी थी, तो मैंने ये प्ले किया. इट वाज दैट टाइम. ओह गुडनेस, ये वो टाइम कनेक्ट किया आपने. ऑलराइट. वहां पे एक जो असिस्टेंट था हमारा, रमजान नदीम नाम है उनका, जो अभी भी कराची में होते हैं, ही इज वर्किंग ENG डिपार्टमेंट में. तो वो क्या नाम है, उसने मुझे बाद में बताया, जब मुझे दोबारा कॉल आई तारिक मिराज साहब के एक ईद प्ले के लीड हीरो के लिए, तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दी, मैं सेलेक्ट हो गया. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट बाद में मैंने पूछा रमजान से कि हाउ डिड तारिक साहब नो अबाउट मी. मैं तो एक प्ले किया था तौफीक साहब का, और मैं वापस चला गया कॉलेज. तो रमजान ने बोला कि तारिक साहब कह रहे थे उनको नया लड़का चाहिए, और मैंने बोला सर एक लड़का है नया, उसने तौफीक साहब का प्ले किया है. तो मैंने कहा तो तूने देखा क्या उसमें, उस प्ले में मेरी एक्टिंग का. कह रहे हो जिब्रान भाई, आप जब एक्सीडेंट से पहले मुड़ के आपने माँ को देखा था ना, आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा था. इमेजिन इट वाज जस्ट अ स्मॉल glance expression which caught the eye of the assistant, and he referred me to a director, and that director was the biggest director in Islamabad. और वो उसका ईद प्ले था. उस टाइम ईद प्ले पीटीवी का बिग डील होता था. एक साल में एक ईद आती थी, ईद उल फितर, उसका एक ईद प्ले एक सेंटर इस्लामाबाद से लीड करना, लाइक ओवरनाइट. आई वुड टेल यू के मुझे अभी ड्रामे की क्या रिकग्निशन मिलती है, वो जो से एक प्लेस है जो पूरे पाकिस्तान से अगले दिन मेरे घर में अम्मा अब्बा को फोन आने शुरू हो गए थे. एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट. तो काम में इस स्टोरी से मैं लोगों को ये बताता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. कब किसी को आपका क्या कहाँ समझ में आ जाए, यू डोंट नो दैट, एंड देन दैट थिंग कैन चाहे वो एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो. एग्जैक्टली, एंड दैट स्मॉल थिंग विल लीड टू अ बिगर थिंग एंड अ बिगर थिंग, एंड देन वन डे लोग आपको कह रहे होंगे यार आप तो लीडिंग हीरो हैं. उन्हें नहीं पता वो शुरू उसी एक छोटे से रोल से हुआ था. बट बी ऑनेस्ट टू व्हाटएवर यू डू. लाइक आपका हर एक्सप्रेशन, हर सीन, फॉर ऑल द एक्टर्स आई विल से कि हर सीन, हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग शुड बी इम्पोर्टेंट. उसको टालना नहीं होता है कि यार ये रहने दो. बिकॉज़ आप अपने क्राफ्ट से सिंसियर है ना जिब्रान. दैट्स इट, एंड इट पेज ऑफ. इट पेज ऑफ. बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, वर्क पेज ऑफ. Honesty pays off. Honesty pays off. चलिए फ्रॉम योर अर्ली रोल्स, वेरी वेरी अर्ली रोल्स, जैसे कि मैंने ऐसे अर्ली रोल्स, मुझे कैप्टन असफंदियार याद आ रहा है रैंडमली, पता नहीं क्यों. से गया नहीं. इसके अलावा my first ISPR serial काशिफ निसार. उसके बाद से लेट्स जस्ट लाइक लुक एट योर रीसेंट वर्क नीम. ठीक है ना. Oh my God. तो व्हाट हैज, अगर आप एक खुलासा दें हमें कि इस इंडस्ट्री ने आपको कोई एक लेसन दिया हो, व्हाट वुड बी दैट? अपने पैसे ना छोड़ो. पैसे हमेशा निकालो. पैसे ना छोड़ो. Jokes aside, that's actually a very practical advice. Yeah, see, I mean, the late Heath Ledger, he said a very beautiful thing, that if you are good at something, never do it for free. So charge. यार वैसे generally industry ने मुझे ये चीज़ ज़रूर बताई है कि nothing is permanent. Nothing is permanent. There was a time in my career when I was packing up my bags, going to London, leaving this industry. Literally, I had booked my tickets. Me, my wife and my son. I'm literally, मैं बीच में एक spell मेरा ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल work was not happening as I wanted it to happen. Like I was not getting the desired roles, and people were not, considering me for the A जो A level का काम होता है उसके लिए. And I was like, I mean, this is not what I wanted to do. I mean, I started off well. बीच में भी a dip आ गया. So
I तो kind कैसा of पीरियड होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि जब आपको जो आप यू फील कि आप यू आर वर्थ मच मोर और yes, आपको उस it's हिसाब से very काम में आगे depressing. काम You have to have very strong nerves to go through it, but at the end of the day, you literally have to have faith in Allah. I mean, that's what helped me. अच्छा, मुझे अल्लाह ने थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया, सो उसके बाद से तो मेरा फेथ ऐसा हो गया कि अब तो छत भी गिर जाए ना लिटरली, तो आई थिंक दे उसमें भी कोई अच्छाई होगी. मेरा इतना अब फेथ है कि आई बिलीव दैट when I'm at my lowest, I get excited because I know for sure that something really good is happening. बहुत Because अच्छी बात की आपने. this is the lowest. You can't go low from lowest. You will only go up. तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बिल्कुल I was like off and done. I would have literally gone. Yasir Nawaz came in my life. Okay. जिस तरह वो आया and then Shak happened and then Chup Raho happened. Chup Raho, back to back. with Sajjal. And Oh, I know, my it favorite. changed the entire course of my career overnight. So I owe it to Yasir Nawaz for fighting for me for that role because I was again not being considered for Chup Raho. ये कहा गया था कि ये इसके लेवल का काम नहीं है. And I'm absolutely fine with it क्योंकि चुप रहो से पहले मेरा लेवल ही नहीं था. But Yasir stood for me and he said he had worked with me in Shak उससे पहले एक सीरियल में. उसमें भी मेरा सपोर्टिंग रोल था. Adil was the lead, I was supporting with Sanam. But Yasir said कि यार तेरा रेंज मैंने देखा है. You can do if guided properly. तो फिर चुप रहो आया तो हुमायूं भाई he was producing it and I got the news that they were saying that इसके लेवल का नहीं है ये. And I was absolutely fine because बाकी he himself was thinking of doing it. अब मैं अपने आप को 2014 में हुमायूं के लेवल पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? So naturally they were right. But Yasir fought for me कि नहीं he'll do it. I'll make him do it and you'll see. So he convinced them that I'll do it and then I did it and you all saw it. Oh, Chup Raho with Sajjal, amazing. Yeah, Amazing. So that तो उससे फिर वापस ऐसा हुआ कि फिर literally producers called me in their offices and they would put the scripts in front of me 8-9 के choose. Oh. So I realized that nothing is permanent here. Like I was down. All these guys were not even thinking about me and now they want me. So do not take this for granted ever. कुछ यहाँ पे for granted नहीं है. You are good for as long as you are good. So don't rely on everything. Don't rely on this thing कि यार whatever is happening, it is only happening because he wants it to happen in a certain way. So have faith. Have faith in yourself, have faith in your craft, keep working, good things will happen. How was it with Sajjal? Because मैं Oh my do you have like I think मैं आपने बहुत सारे co-stars के साथ काम किया और कुछ के साथ तो repeatedly काम किया. बहुत काम you किया, know? but I must say and I keep saying it, मैंने सज्जल के साथ सिर्फ एक बार काम किया. Only one time. And believe me, मेरी जो पर्सनल एक फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट है काम करने में, उनमें she goes straight to the top with सबा कमर. With Sabaa Kamal. These two are my सबा के साथ मैंने किया है PTV back तारिक मिराज साहब के टाइम्स से me and Sabaa have worked. So she is an older friend of mine. Then I got to be her hero in the first film of mine, so that makes it very special. But Sajjal, वो एक project was like, you know, that is such an important project in my life, so you can see the importance. Not because of that. She herself is a brilliant actress, a fantastic human being, brilliant actress. So I had great time with her. जिससे भी मैंने बात की है तो she's like she brings a special energy to the Yes, set. absolutely. I don't think my character would have had that impact had it been anyone in front of me except Sajjal. All right. वो मासूमियत और वो सब वो वही लेके आई थी. So and besides that, you know, now the whole world knows or the whole country knows that she's one of the best actresses we have. चलिए आपने अपने फेवरेट रोल के बारे में बता दिया, मैं बताऊं मेरा कोई फेवरेट कौन सा है? Like I didn't say that was my favorite role. Okay, चलिए दोबारा पूछ लूं कि कौन सा I फेवरेट will है tell आपका? you my favorite character which I've done so far ever. But that was the most important project of my life, Chup Raho. If you ask me my favorite character, तो मैं दो बताऊंगा. एक in a good way, emotionally जिसके साथ मैं इतना connected था, वो था again यासिर नवाज का सीरियल था खुद गर्ज. खुद गर्ज. उसमें मैंने कैरेक्टर किया था this extremely sensitive guy. जो मतलब वो
that is actually a lot of me in real. Okay, so you think that you Super are recessive. softy हैं? बहुत. Oh really? People can walk over me literally and I won't say anything. Extremely recessive, introvert, crying inside type वो जो होता है. तो वो करते हुए मुझे इतना मजा आया था ना. I mean, और दूसरा the most sinister character which shook me from inside was Neem. Shehzad Kashmiri tested my limits in this project, but I thoroughly enjoyed it. I mean, that was a side which I've never touched. Karamat you know, Khan. so Karamat ka character was it's fantastic. I mean, What I went loved, into making of Karamat Khan? Now that we're talking about it. you know, आप कह रहे हो कि आप बहुत tested your nerves. yes, तो okay. ऐसा क्या किया आपके साथ? Something which happened, which has never happened to me. Hats off to Shehzad. मुझे कैरेक्टर मेरी और शहजाद की दोस्ती 20 साल पुरानी है. When I did तुम मेरे हो, he was the director of photography. So imagine हम 20 साल से एक दूसरे को जानते काम कर हैं. रहे हैं. तो हमारी ना दोस्ती बहुत ज्यादा है, फ्रेंडनेस बहुत ज्यादा है. शहजाद was very worried. ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे बाद में पता चली. अच्छा. पहले नहीं पता थी. Hindsight है ये आपकी. या नहीं, ये मुझे बाद में उन्होंने बताया. I'll take you back to the story. हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा है कि ना हम सीरियस नहीं लेते एक दूसरे को. Now just before the project, 3 days before, I get a voice message from Mahesh Vaswani, जिसमें शहजाद कह रहा है कि यार ये कैरेक्टर यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, जबरान नहीं कर पाएगा, उसकी मुझे डेडिकेशन नज़र नहीं आ रही है और ये मसला है वो मसला है. और मेरा ना फ्यूज स्विच ऑफ हो गया ना, क्योंकि he put a finger on my dedication and conviction which I pride in myself कि यार everybody knows कि अगर मैं काम करता हूँ तो सही करता हूँ. When he said that, मैं तो फ्यूज उड़ गया मेरा. I gave Mahesh hell कि how can he say कि मैं dedicated नहीं हूँ या मेरी conviction नहीं है without even working with me. और मैं वो जो मैंने लैंग्वेज यूज की मैं लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता. तो महेश ने बोला यार नहीं वो कर रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ, तो रुक जा यार कुछ नहीं होता. मैंने कहा यार बीप 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 उसकी ऐसी की तैसी. हाउ कैन ही से दैट अबाउट मी. तो कह रहा है यार तू रुक, तू ठंडा हो जा, तू गुस्सा ना कर, मैं कर रहा हूँ बात शहजाद से यार. और फिर मुझे शहजाद का रात में फोन आया कि यार ठीक है वो मैंने देखा है सारा, तो हम फिर करते हैं इसको कैरी ऑन. मैंने कोई बात नहीं की. ओके हाँ ठीक है, ओके हाँ ओके 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 कर. मैंने अपने आप से तहैया किया उस टाइम. मैं इतना गुस्से में था टिया. मैंने अपने आप को मैंने बोला मैं जाऊंगा ये काम करने एंड आई एम गोना प्रूव अ पॉइंट टू दैट गाय. मैं वहां गया था कश्मीर पॉइंट प्रूव करने कि नो वन कैन डू दिस करामत बेटर देन मी. इतना गुस्से में गया था. आई वेंट देयर ब्रीफिंगली वो किया. मैंने लिटरली अगर आप देखो मैं एक्चुअली गुस्से में रहता था बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग कि दे थिंक दैट आई कैन नॉट डू दिस. No, I gotta prove them wrong. I had to prove a point. वो मैंने किया. एंड जब हम एंड में पहुंचे तो 4-5 दिन पहले मुझे शहजाद ने, फिर मुझे पहले एडी ने बताया, फिर मुझे शहजाद ने बताया कि they planned Oh God. the whole message thing to tick me off. And I was like, You played right into their hands. and I was like, Shehzad, genius. That was genius, master stroke. 'Cause it got me. कह रहा है यार अगर मैं ना करता तो तू तो सीरियस ही ना होता. तू तो चलते फिरते हम एक दूसरे को जो कहते हैं मुझे यूं चूंटियां मारता ये कर. मैंने कहा मैं बिल्कुल यही करता. कहता है तूने देखा 2 महीने से तूने मेरे साथ मस्ती नहीं की इसीलिए मैं ये मैंने कहा जीनियस, ब्रिलियंट यार. नो वन हैज प्लेड लाइक दिस विद मी एंड इट वर्क्ड. I think they should use these techniques more often. But I was like, I was a fan. मैंने कहा शहजाद तेरे काम का तो मैं फैन था, लेकिन जो तूने ये ट्रिक किया ना मेरे साथ, wow. Part of the work, I think. Very nice. That was something really interesting which happened behind the scenes of Neem. Behind the scenes of Neem. Okay, all right. अच्छा जी, मैं आपको बताई थी कि मेरा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका, जो मैंने देख के ना, वैसे I've seen a lot of like I've seen you since a long time. I've been watching. लेकिन एक मैंने देखा प्रोजेक्ट और मैं जो है ना मैं हिल गई. बताइए. एंड शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे. मैंने दरार देखा और मुझे तो शायर इतना आपको पता है यू नो या इट वाज लाइक आपको मुझे पता है आपको लव भी मिला है उस ड्रामे पे और बहुत हेट भी मिला. आई नो दरार वाज फैंटास्टिक एक्चुअली. इट वाज फैंटास्टिक. शहजाद portrayed me very stylishly and very उसमें वो sinister वाला edge भी था उसमें. There was something about him. There was something about it. Like I want to know you more. Like there was something. Why? Because
मैं स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने शहजाद को बोला कि मुझे ना जो लड़के हैं ना बहुत मारेंगे। रीजन, वी वर शोइंग अ गाय हु इज अ परफेक्ट हस्बैंड, अ परफेक्ट ग्रैंडसन, आइडियल एक हाउस होल्ड चलाने वाला। तो हर लड़की कहेगी कि इससे अच्छा हस्बैंड कोई नहीं है, इससे अच्छा बेटा कोई नहीं है, बट येट ही हैज दिस डार्क साइड जो उसने ऐसी छुपाई हुई है। और नॉर्मली हमारे ड्रामों में दिखाते हैं जो इस तरह का बुरा आदमी होता है ना, वो घर वालों के साथ भी बुरा होता है, बीवी को भी लान तान। ये तो आइडियल था, पॉलिश्ड, और पीछे इसका इतना डार्क साइड। तो पीछे से कोई और ही गेम डाली हुई तो है। मैंने कहा सब मर्द सारे कहेंगे हमारी दुकानें बंद कराया करते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चल रहा है। लाइक आई नो सो मेनी गाइज, लाइक यू नो दे आर लाइक बेहतरीन हाउस होल्ड, सब सेट चल रहा है, साथ में उधर भी फुल पार्टी चल रही है। सो दिस थोड़ा आईना दिखाने वाली भी बात होती है। आई वाज लाइक यार ये मुझे बहुत, मेरे दोस्त ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे। एंड हुआ ऐसा, मेरे दोस्तों ने मुझे इतनी सुनाई कि अभी तू क्या दिखा रहा है यार, तू क्या चाह रहा है हमें, कह रहे हैं लिटरली हमारी बीवियां अब शक करती हैं हम पे कि तुम जो इतने अच्छे हो ना, तुम इतने अच्छे हो नहीं। ये देखो, you almost convinced me, मैंने कहा यार ये क्या, लाइक अच्छा मुझे बताएं, लाइक व्हेन द प्रोजेक्ट केम टू यू, आई वांट टू नो ऑल अबाउट दैट, जितना मैं ट्रिविया आपसे निकलवा सकूं ना। लाइक व्हेन द प्रोजेक्ट केम टू यू, like कुछ झिझक थी साइन करने में? Not at all, because when I read the script, I knew I'm doing it. Yeah. I think मैं को बताऊँ, like from all the roles, I think this was like I felt custom made. I don't know, it was just you were meant to play it. मैंने जब पढ़ा, Mary was like, you know, we decided, I said, Mary, I'm going to do it because it makes a lot of sense to me. It has all the elements of a good drama. तो शहजाद ने फिर जब मेरा कैरेक्टर जैसे डिजाइन किया, you know, from the cufflinks to the clothing to my, she said that then he has to look impeccable like a Wall Street banker. तो वो बड़ा टाइम लगता था उसकी तैयारी में और हर चीज में। She was so particular about small things कि अगर हमने इसको इतना क्लासी दिखाया है तो फिर ये नहीं होगा कि टेबल पे बिरयानी पड़ी होगी इसके, फिर वो बटलर्स होंगे और फिर उस तरह एवरीथिंग विल बी लाइक इसके सिस्टम में। तो वो फिर वो एम्बियंस, वो ऑरा जब आप देखते हैं तो आप यू गेट सक्ड इनटू इट। And then the way I played it, she was there to guide me, कहाँ उसको अंडर प्ले करना है, कहाँ ओवर करना है। I am a very, very director's actor. I actually give myself to the director completely. मैं अपनी बहुत कम चलाता हूँ। So इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि शायद लोगों को मेरे काम में वेरिएशन नज़र आ जाती है। वो मेरी वेरिएशन नहीं है, वो हर डायरेक्टर की है। मैं तो एक ही जैसी बात करूँगा, बोलूँगा, बट इफ़ आई एम गिविंग इट माई सेल्फ टू हिम, ही इज़ लाइक। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। आपने नीम में वो सीन देखा होगा, when I am about to push my father. Yes. So when I rehearsed it, I did it with anger. क्योंकि वो जुमले भी ऐसे थे ना कि आपने बचपन से मेरे साथ ये किया है, आपने कभी मुझे कुछ नहीं होने दिया, मेरी ख्वाहिशात को आपने वो कर दिया। तो जब मैं रिहर्स कर रहा था तो मैंने नॉर्मली ऐसे रिहर्स किया कि मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि आप मेरे बाप नहीं है और मैं भी आपका बेटा नहीं हूं, और मैं तक बनता भी ये था। स्क्रिप्ट में भी यही लिखा हुआ था, उसमें स्क्रिप्ट में इमोशंस इतने नहीं लिखे होते, वो आपने खुद माने। शहजाद मुझे कहता है, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी इनोवेटिव डायरेक्टर, कहता है यार इसमें शॉक एलिमेंट नहीं आ रहा है, तू गुस्से में बोलेगा लोग समझ जाएंगे कुछ करने वाला है, तू रो पड़, लोगों को पता ही ना हो, लोगों को लगेगा ये लोगों को लगेगा कैथारसिस करने आया। बिल्कुल एंड में अचानक अपनी आंख में वो हैवान लाई और फेंक दी। सो व्हेन आई इनिशियली आई वाज लाइक, रोते हुए बोलनी है सारी लाइन। सो देन मैंने इरेज किया वो सारा अपने जहन से जो मैंने तैयार किया हुआ था ना, फिर मैंने दोबारा उसको न्यूट्रल किया, फिर पढ़ के उसको उस फ्लो में लाया कि अब इसकी आंखों में गला रुंधा हुआ है, आंखों में पानी है और वो बोल रहा है। तो फिर उस तरह किया। इट मेड 100 times more impact than what I would have done. So you see, you have to listen to the director, have belief in him and give yourself to him. वो आप ही के लिए अच्छा होगा। So दरार में भी what you saw was शहरजाद's point of view, ऐसे बोलेगा और इस तरह। How did the women in your family react to your character? वो दोस्तों को तो बता दो, उसमें से बड़ी सुनी आपने, लेकिन घर की औरतों वाला क्या था, like cousins, friends, wife, like what did they say? Like उनका क्या था reaction? Actually, my family they love whatever I do, good or bad. So, because for them I'm the Gibran, not the actor. So they love whatever I do. तो वो मुझे उस तरह जज कभी भी नहीं करते। नहीं करते। My mother gets upset when
bad is happening to me on the screen. अच्छा. So she's like, why do you make me see this? Because I see my son in misery. I don't see an actor in misery. So it affects me. मैंने कहा अम्मी अब ड्रामा है मैं क्या करूँ? क्या करें? So we can't see the good guys getting away and or the bad guys getting away. And mostly I am the bad guy, so I have to go in the Mostly misery. you are the bad guy. ये Yes. भी एक चीज है. But you know एक पता है बात ये है कि usually like type casting तो होती है एक्टर्स के साथ, लेकिन आपका हर एक नेगेटिव अगर भी है ना वो भी डिफरेंट है एक Different, दूसरे yes, से. you have to bring ये कहाँ variation. से आता है यार? तो I think again the directors, Director, actors, yes, absolutely. मैंने listen to your directors. मैंने गैरत किया था अहमद भट्टी के साथ, तो उसमें छोटी सी चीज थी कि अब वो बहन को जला देता है और इसमें इकरा अजीज थी उससे छोटी वाली, तो उसके साथ फिर मेरी टसल चलती. अब मेरा डायरेक्टर कहता है जबरान भाई आपकी आंख में ना सुरमा लगाऊंगा और आपने आंखें फाड़ के रखनी है. आप वो सीरियल देखे, मैंने पूरा सीरियल यूं किया. एक छोटी सी चीज से पूरा एंटायर पर्सोना चेंज हो जाता है Elevate हो जाता है. कि आपने अब सारी बात यूं करी. अब आपको लगेगा मैं गुस्से में, हो गया. आंख खोलने से सिर्फ. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. आप सुने डायरेक्टर्स की तो आप मैं सारे अब ये जो मेरे कंटेम्प्रेरीज से तो मैं सीखता हूँ, उन्हें मैं क्या बताऊंगा, लेकिन जो जूनियर्स हैं मैं उन्हें ये बताऊंगा कि भाई तुम सब अच्छे एक्टर नहीं हो, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, उनसे सीखोगे तो अच्छे एक्टर्स बन जाओगे. इकबाल हुसैन ने लिखा है अजीब, इन अ ब्रिलियंट सेंस अजीब, बिकॉज़ मैंने नहीं पढ़ा ऐसा स्क्रिप्ट कभी. इट्स अबाउट मेंटल पीपल. सो यू नो आप बाकी वो उसमें सब पागल हैं. इसमें सब पागल है. तो आप देख के भी पागल हो जाएंगे. मैं पढ़ के पागल हो जाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मेरा सर घूम जाता है, क्योंकि पागल तो बेतुकी बात करता है. ओके, वन मोर प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग, जो कि तैयार था. लकी अभी देखो आप कहोगे चैनल खोलो और ये नजर आता है. वो प्रोजेक्ट अब ऑन एयर आने वाला है जियो पे. उसका मैंने कल से देखा है टीजर. अभी मेरा टीजर नहीं आया बिकॉज़ दैट्स अ हॉरर सीरीज. Okay. उसका नाम है जिनज़ादा. जिनज़ादा. And again, Heaven not one now. of the toughest projects physically which I've done was जिनज़ादा, because उसमें मुझे prosthetics में जाना होता था. I'm playing a jinn in it. Yes, it's a very interesting project. आपको पता है जिब्रान, यू आर वेरी लकी बिकॉज यूजुअली पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर दे कंप्लेन कि हमें रिपीटेटिव बिल्कुल वही किस्म के रोल्स मिलते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू आल्सो डिजर्व इट कि आपको है डिफरेंट वेरिएशन. अगर नेगेटिव, जैसे मैंने बोला आपके नेगेटिव्स भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. मैं आपको बताऊं बिल्कुल, ये इस स्टेज पे भी मेरे साथ ये होता है. सारे काम ऐसे नहीं होते हैं. मैं कभी कभी रिपीटेटिव काम भी करता हूँ कि okay, the money is good, I'm free, project is good, decent people, let's do it. तो यूं भी करते हैं आप काम. लेकिन you have to look out always. ये आपकी अपनी वो है कि you have to make sure कि एक प्रोजेक्ट में याद रखिएगा हीरो कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं होगा. वो सिर्फ लीनियर एक एंगल पे हीरो रहेगा. If you want to test your limits of acting, go to the characters जिसमें shades होते हैं, जिसको negative बोलते हैं या जिसको grey area बोलते हैं. वहाँ जाओ, वहाँ फिर आपको पता चलेगा आपको वेरिएशन. आपको पता है ये मुझे हर एक एक्टर ने बोली जिस नेगेटिव रोल के लिए किया है. आज दिस इज समथिंग दैट शमून अब्बासी टोल्ड मी. Yes, absolutely. यू नो लाइक विद नेगेटिव यू हैव सो मच रूम. आप बहुत कुछ कर सकते हो कैरेक्टर के साथ. आप देखें दरार में, आप मुझे बताएं मैं हीरो हूँ या विलन. You can't tell. So if you are in a gray area, तो आपके पास मार्जिन होता है पॉजिटिव भी खेलने का, नेगेटिव भी खेलने का. अच्छा, कभी जैसे फॉर एग्जांपल दरार में भी बहुत बैकलैश आया था, और कभी आपका काम का नेचर ऐसा है कि यू हैव यू रिसेप्टिव ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल. आपको रिसीव करना होता है, उसको झेलना होता है. कभी कभी हर्ट होता है बंदा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बिलो द बेल्ट हो गया. तो लाइक ऐसा कब आपको कोई इंस्टेंस आया था? आई थिंक पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दरार बहुत आया था. दैट वाज द टाइम दैट एवरी टाइम आई वुड कोई भी एपिसोड आए एंड यू वुड बी लाइक यू नो मसला, यू नो बैकलैश, यू नो बहुत बैकलैश. आई थिंक मुझे जो व्हाट आई कैन रिमेंबर इट वाज ड्यूरिंग दरार पे. लेकिन वैसे भी जनरली कभी कभी आता है काम. मुझे चुप रहो पे बहुत चुप रहो पे. अच्छा, उसमें भी सेक्सुअल हैरेसमेंट थी. दरार में तो हैरेसमेंट नहीं, वुमेनाइजिंग का एस्पेक्ट दिखाया था. गैरत पे मुझे आया था. हाउ डू यू डील विद इट? और क्या ऐसा क्या क्रिटिसिज्म था जो अभी आज तक आपको याद है कि यार ये भी बोला गया? None, because right from the start I have मैंने अपने सिस्टम में बात डाल दी है कि क्रिटिसिज्म वाली बात को दिल पे लेना ही नहीं. Otherwise I won't be able to work. लेकिन कहना आसान होता है, लेकिन आप अपने आप को ट्यून कर सकते हैं. ये आप देखो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, वो मुझे गालियाँ दे रहे होते हैं. ओके फाइन,
Okay, fine. What? If I reply to them, they win. Yeah. So what I do? I ignore. I do not reply to anyone. I do not respond to anything. Criticism कौन सा मुझे मैटर करता है? मेरे प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे मेरे डायरेक्टर्स हो गए या वो लोग जो मेरे काम को क्रिटिकली मुझे इम्प्रूव करने के लिए, देखो एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आई विल टेक इट एवरी डे। आप मुझे बोलो जिब्रान मैंने ये देखा, इसमें मुझे लगा अगर ऐसा होता तो ये एनहांस हो जाता, आई एम गोना लिसन टू इट, आई एम गोना कीप इट इन माय हेड। लेकिन अगर आप बगैर होमवर्क के या बगैर किसी बेस के बोलेंगे तू गंदा एक्टर है, I'm not gonna listen. That's to unfair. it. That's unfair. But I'm not gonna listen to it. I'm not gonna entertain it. For me, that's meaningless. But आप अगर मुझे कोई काम की बात पे क्रिटिसाइज करेंगे कि यार अगर तुम उस सीन में इस तरह करने के बजाय यूं करते तो बेहतर हो जाता, I am gonna be thankful to you. अच्छा जी, कभी रोल्स की ड्रामे की रिक्वायरमेंट होती है दैट यू हैव टू बी वायलेंट, लेट्स से कि कभी थप्पड़ चपेड़ लगा दी, कभी हाथ पकड़ लिया। अब हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे कि यार क्या गलत है क्या नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ बिकॉज आई नो यू आर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई नो यू आर अ नाइस पर्सन, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन अगर आपको लेट्स से अगर आपको एक सीन करने जिसमें आप हीरोइन का हाथ पकड़ रहे हो या चपेड़ लगा रहे हो या कुछ पुश कर रहे हो, ठीक है कुछ कर रहे हो, तो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ? बिकॉज चलो लौंडे को तो आप लगा दो, बट व्हेन इट्स लाइक अ फीमेल को स्टार, Well, how do you like? now तो after so much work we are tuned to it, so I discuss it with my co-star always. अगर ड्रैग करने का सीन है, इनफैक्ट अगर मुझे हाथ भी पकड़ना है उसका, so I'm gonna take permission from her. This is the right way to do. कि यार I'm gonna hold your hand in this scene, is it okay? जो दोस्तें हैं जिनके साथ 20-20 साल से काम किया उनके साथ तो इतना फॉर्मल नहीं होते, बट कोई नई लड़की जब आ जाती है तो एट एवरी स्टेप आई आस्क हर, इवन अगर सिर्फ हाथ भी पकड़ना है तो मैं पूछूंगा यार मैं आपका हाथ पकड़ूंगा इस सीन में, इज इट ओके? तो वायलेंट सीन्स में तो यू हैव टू एक्चुअली रिहर्स विद हर स्लो पहले कि यार मैं यहाँ तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, यहाँ से खींचता हूँ आपको लेके जाऊंगा, तो वो सारा हम कर लेते हैं। लेकिन आई ऑलवेज टेल देम कि आई एम गोना माइम, आपने एफर्ट करनी है। मैं अगर तुम्हारा गला दबाऊंगा तो मैं सिर्फ हाथ रखूंगा और मैं यूं करूंगा और आपने एक्सप्रेशन आपने देने, मैं वो नहीं करूंगा। यस, आई कैन नॉट डू दैट। थप्पड़ हम हमेशा माइम करते हैं सामने से। मैंने कहा मैं इतनी मेरी अब प्रैक्टिस हो गई है, बैक इन द डेज मैंने मुक्का एक मार दिया था बंदे को शूट के बीच में, क्योंकि मुझे डिस्टेंस का अंदाजा नहीं था, तो जब मैंने लगा तो उसके जबड़े पे पड़ गया। बट आई लर्न माय लेसन द हार्ड वे, आई प्रैक्टिस्ड एंड नाउ आई नो हाउ टू स्लैप विदाउट टचिंग द पर्सन, और वो लगे भी बिल्कुल ऐसा कि थप्पड़ ही है वो। तो वो प्रैक्टिस से हो जाता है। बाद में क्या होता है, लाइक यू नो लेट्स से कभी लग गई को-स्टार को, फीमेल को-स्टार को स्पेशली, तो बाद में लाइक ह्यूमरसली आप लोग ह्यूमरसली टाल देते हैं। सबसे पहले तो आपने उसको जाके वो, मैं इकरा को मुझे याद है मैंने इतना मारा उसमें गैरत में, इतना थप्पड़, बात पे थप्पड़। एक सीन में मैं जिनान हुसैन को पकड़ के जा रहा हूँ जलाने के लिए, हाँ पीछे पीछे इकरा आ रही है, भाई छोड़ दो, तो मैं यूं करता हूँ, तो वो धड़म से उसको ना, तो उसने हाथ, मैंने बोला था मैं यूं करूंगा, उसका हाथ यहाँ लगना था, लेकिन वो गिर गई पीछे। फ्रैजाइल भी है वो, she's very tiny। तो वो सीन करके फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा यू ओके? बोला हंसते हुए बोला या ओके ओके। मैं आपसे अपने को-स्टार्स के बारे में पूछूंगी आपसे, बिकॉज यू वर्क हिबा के साथ, तो आपने इतना काम किया है, तो हिबा की तो कुछ अच्छी आदतें बताएं, कुछ और कुछ फनी आदतें। सबसे मेरी जो फेवरेट आदत है वो है कि वो शाम 6 बजे गायब हो जाती है। क्यों? वो चाय पीने जाती है। ओह, उसको हर जहाँ होती है उसको पता होता है यहाँ पे एक ढाबा है। अच्छा। यार ये तो बड़ी तो प्रैक्टिकल लड़की है, बड़ी प्रैक्टिकल लड़की है, पता है। गाड़ी पकड़ी की जाएगी वहाँ। एक दिन मैंने पूछ लिया ना, 2-3 दिन देखूं शाम 6 बजते ही गाड़ी में बैठती चली जाती। मैं कहूँ कहाँ जाती है तू? कहती मैं चाय पीने जाती हूँ। मैं कहा यहाँ मंगवा ले। नहीं यहाँ मजा नहीं आता। अगले दिन मैंने कहा मैं भी जाऊँगा। फिर मुझे लेके गई तो ढाबा था, सुपर दूध पत्ती। मैंने कहा यार, कहती मुझे हर इलाके के ना बेस्ट ढाबे का पता है। आयशा खान का नाम नहीं लिया आपने? देखें, मैं वो कहने लगा कि आयशा is and was my favorite person ever as a person, not as a star। क्योंकि आयशा से एक तो मेरे फैमिली लिंक्स भी हैं थोड़े। अच्छा, how? Yes, my sister is married to her cousin। अच्छा। So I met her first time in my sister's wedding back in the days। तो एक फैमिली लिंक है हमारा। तो फिर मैंने आयशा के साथ काम भी बहुत किया। जब उसकी शादी हुई उससे बिल्कुल पहले बैक टू बैक हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। तो शी इज़ माई फेवरेट पर्सन टू बी विद ऑन द सेट्स। What is she like? Because मतलब मुझे मेरा ये था कि you know like because I was an emerging journalist, मेरा था कि you know she's I want to interview her once। I'm sure she was a
She was a tough one to work with for a lot of people. She was famous for it as well. But for me, it was like breeze like. और मुझे तो literally एंड में कास्ट किया जाता था कि ये इसको रखो, ये आयशा से काम करवा लेगा। अच्छा। तो मेरा why was she tough to work with? Why do you think? And why was it such easy? She was Aisha Khan, that's why. Yeah. But why do you think it was easy कि आपके साथ उनकी चल जाती थी? ऐसे क्या मना लेता था ना। मना लेते थे। अच्छा। बाकी डरते होंगे। बाकी डरते होंगे। मेरी सुन लेती थी, फिर मैं चूंकि मेरा एक फैमिली लिंक भी था तो मेरी वो लिहाज भी करती थी। तो मैं कहता था आयशा चल यार सीन करा, चल आयशा यार सीन करा ले, चल यार, तो वो करा लेती थी। तो बट ये कि she was fantastic, fun to be with and one of the most beautiful girls we've ever had on screen. इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। बाकी सबा is the finest actress, one of the finest actors we have. सज्जल, सबा, आयशा, I think हिबा and चार और पांचवा एक नाम रहता है। Okay, that spot is waiting for somebody to fill it in. I have to think projects. You know, there are so many wonderful actresses. Actually categorize करना भी बुरा होगा ये top 5 वाला, लेकिन चूंकि ये सज्जल हो गई, सबा हो गई, हिबा हो गई, इनके साथ मैंने इतना काम किया है, ये मेरी एक तरह से I'm very eager to work with them even now, anytime. चले मैं आपके 5th spot जब भी आपसे मुलाकात होगी मैं बोलूँगी we'll keep it open. We'll keep it open for the 5th one. Maybe you start acting. All right, I don't think that's happening anytime soon. आपने मुझे बताया जिब्रान कि मैं बार बार आपको शहीर बोल रही हूँ यार, ये होता है बार बार मेरे मुंह से शहीर, I'm catching myself. आपने मुझे बोला कि आप बहुत sensitive हैं. I am. And these girls and people, anybody can walk over you, you know. Yeah, they sensitive आदमी, emotional आदमी, फिर you know, they are being क्या कहते हैं उसको? दिल फेंके आप क्या? नहीं, no, not दिल फेंक. I am being misused for my emotions a lot. तो वो होता है कि you know, फिर वो आप you are not a tough nut, तो फिर वो आप अगलों को हेल नहीं देते हैं, लोग आपको हेल दे देते हैं। अच्छा। मैं वो रिसीविंग एंड पे होता हूँ इसलिए ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई रोल अदा किया और उसकी कोई उस किरदार की कोई अच्छी या बुरी आदत आपके साथ रह गई हो? रह जाता है सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ आपको। कोई बुरी आदत कभी रही? वैसे मेरी कोशिश होती है ऑब्वियसली कि आप जब एक कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो बुराई जो होती है वो आपको उस टाइम पे भी बता रही होती है कि दिस इज गोना एंड रियली बैड, सो यू डोंट वांट टू अडैप्ट एनीथिंग बैड। तो अच्छाइयाँ बहुत सारी होती हैं जो आप इंस्पायर होते हो करते हुए, वो आपके सिस्टम में रह जाती हैं, तो वो तो होना चाहिए। और कोई बुराई क्यों सीखेगा कोई किसी से, तो वो उसको हम वॉश आउट करते हैं। आई डोंट ब्रिंग माई सेट टू माई होम। वो बहुत ज़रूरी होता है, ह्यूमन रहना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। It's working for you? Yeah, it's working for me. I have a set of friends who are not from media. My old college friends, my business partner, my friend, जो मेरे मेंटोर, मेरे बड़े भाई समझ लें, जो मेरे गाइड हैं, बिलाल नाम है उनका, बिलाल हसन। एक्चुअली वो तो बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है मेरी लाइफ में, जो मुझे ग्राउंडेड रखता है, जो मुझे जो है ना वो फिल्टर है वो हर चीज़ का, लाइक यू नो ही क्लेंजेस मी मेंटली, इमोशनली। मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, ही इज़ द फर्स्ट मैन आई कॉल, यार ये मसला है, ये क्या हो रहा है, मैं ये सोच। सो माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी लर्नड एंड अ वेरी गुड गाय। तो इस तरह के लोग बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको थोड़ा डाउन रखें। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देख के आप बिल्कुल स्टारस्ट्रक हो गए हो? Be it any female actress or an actor even. See, I still kind of get in awe when I see Mahira. Since I haven't worked with her, हमारी एक बहुत अच्छी pleasant सी सलाम दुआ वाली एक relation है. So I do kind of get in a little bit of awe when I see her, which is very natural जो होता है. बाकी in true senses I got starstruck when I saw Amir Khan on the airport in Pakistan. I was by chance there to receive my brother-in-law. वो जब इमरान खान की फंड रेजिंग के लिए आया था, and suddenly he just came in front of me and I was like, oh my God. Gone. I was like dead. That's a good. That was a true starstruck moment. I realized that this is what starstruck is like. So from Bollywood, who's your favorite actor?
Acting wise, Amir Khan, of Amir course. Khan, of course. But aura wise, Shah Rukh Khan. 'Cause what he has is stuff dreams is made of. Like, वो तो Okay, so Gibran, conclusively, you said that you're a very ambitious person and आपको कुछ ना कुछ नया करना होता है, आपको कीड़ा है ये ना करने का. तो yeah. what do you think is next for you? there, see, media wise, what next is projects. इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा different projects ही कर सकते हैं. So people will keep seeing me in different things and I'll keep trying to entertain them. Personally, there are a couple of things I'm doing, but they are very nascent stage पे हैं कि मैं discuss करूँ. There are some things which I'm planning to do. Besides the restaurants, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं. Bilal bhai is looking after them. I'm so blessed that he's there for them. Now there's some other things I'm trying to do, so दुआ करें बस वो हो जाए तो फिर बताऊंगा जब हो जाएगा. अभी तो कुछ नहीं हुआ है. But yeah, I'm actually branching out in business now. All right. A little You bit. have that business side too. Yeah, absolutely. Yeah, I think वो By restaurant the way, I से- just opened a salon in Islamabad. Not many people know. Okay. That is also a thing जो पंगा लिया है मैंने with someone. Like there was this salon about to get ready, so I came in as a half partner, 50%. Can you tell us I the gave- name? It's by name of Glam and Gloss. बड़े वैसे चालाक बिजनेसमैन है आपने, जो है ना बिल्कुल सही जगह इन्वेस्टमेंट किया. आपको पता है कि अभी तो सैलून में बहुत पोटेंशियल है. Let's hope अल्लाह बरकत दे बस काम में. यही है. Inshallah, inshallah. Best of luck for your venture. Thank you. Inshallah, we're gonna hear soon about it. I think When CP Islamabad, where you partnership- go, you have to get a makeover done by. Okay, for sure. That's done. That's done and sure for that.